गुरु कभी कभी आते हैं। ओके, ठीक है। अब ओके, चल। प्रबल, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किए है आपने? चल। Sarpreet, can you hear me? Sarpreet, can you hear me? Okay, just a second. So लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, नाउ राइट। सो ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट, कल हम डिस्कस करते हैं ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, making a saturated solution. We get AB aqueous. Now it forms A positive plus B negative. A positive and B negative, right? डिसॉल्व होने के बाद में, आयनाइज होने के बाद में, इफ आई से A positive concentration is S mole per liter, B will also be S mole per liter. दोनों के नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे, 1 mole, S mole, S mole, right? And for this I can write equilibrium constant is equal to what? A positive into B negative upon AB, right? So this is now is equal to now S into S. This K into AB is called as the KSP value. Is called as the KSP value. S square. So S is equal to now under root of KSP. ये डेरिवेशन करेक्ट है? अब समझ में आती है? राइट। सरप्रीत, मेरी आवाज आ रही है अब? मेरी आवाज क्लियर है अब आपको? राइट। अर्शप्रीत, कैन यू हियर मी? अर्शप्रीत, कुछ न्यूमेरिकल किए आपने जो टॉपिक मैंने दिए थे आपको, पीएच एंड केएसपी? कल की क्लास यूजलेस हो जाएगी आपके लिए। ओके, एनीवेज कर लेना उसको, बिकॉज उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो S इज इक्वल टू रूट के एस पी। अब न्यूमेरिकल पर्पज में क्या दिया जाएगा आपको? सॉलिबिलिटी दिया जाता है, के एस पी कैलकुलेट कर दो, या के एस पी दिया जाता है, एस कैलकुलेट कर दो, बट दिस इज मोल्स पर लीटर, राइट? नोट इट डाउन।
कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है यहां पर? हेलो? Now, if we have this compound AB2 type of salt, solid, dissolve किया, saturated solution बनाया, then it become AB2 aqueous, and now it get dissociated to give A2 positive plus 2B negative. And for this equilibrium, I am writing equilibrium constant K, right? So solubility the A is S mole per liter, and this is the 2S mole per liter. So this is into S into 2S to the power 2. I can say 4S cube is equal to KSP. कैलकुलेट करना है. Am I clear? Done. Now you calculate for AB3. Start. Calculate for AB3. Can you do? Yeah. 3S square. Okay. Check it. If it is solid, make it first of all like this. A, B, 3 aqueous. Then it will form A3 positive plus 3B negative. S into यहाँ पर आ गया 3S. When you write the KSP value for this, it will be equal to A3 positive and B negative to the power 3, right? So S into 3S to the power 3 कितना आ रहा है? 27 S to the power 4. गलत हो गया क्वेश्चन? चलिए, make one correction now. Make it for next A2B3 type of salt. सबसे पहले इसको डिसोसिएट करना बता देता हूँ, उसका अगला स्टेप आप हमने करना. It will form A2B3 aqueous, which will dissociate to give 2A3 positive, 3B negative, B2 negative. ये मैंने डिसोसिएट कर दिखा दिया अब आपको. अब आप उसका सॉल्युबिलिटी केएसपी कैलकुलेट कर दो. कैलकुलेट फॉर केएसपी.
लेट मत हुआ करो, बहुत कुछ हो गया अब तक तो, है ना? गलत हो जाएगा ना। इफ s is now here 2s, this will be now 3s, राइट? सॉलिबिलिटी अगर इसकी 2s मोल पर लीटर है, दिस विल बी 3s मोल पर लीटर। जस्ट अ सेकंड। हेलो। ठीक है, गुड मॉर्निंग ए क्लास। चल ठीक है, ठीक ठीक। ओके। सो KSP is equal to now A3 positive power 2 and B negative 2 negative to power 3। आप सॉल्व कर सकते हो, 2s to the power 2 and 3s to the power 3। It's a 4s square multiplied by 27s to the power 3, 108s to the power 5। Got it? ऐसा ना, पावर की गलती हो गई। चलिए, तो जो सॉल्ट्स का मैं आपको KSP का डेरिवेशन दे रहा हूँ, एक तो डेरिवेशन का न्यूमेरिकल डायरेक्टली आ सकता है, कैलकुलेट द KSP फॉर दिस। अनदर इज आपको सॉलिबिलिटी दिया हुआ है, फाइंड द KSP, और वाइस वर्सा KSP दिया हुआ है, फाइंड द SP सॉलिबिलिटी, राइट? टाइप ऑफ सॉल्ट कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी टाइप। मैंने आपको 4 टाइप्स करा दिए, A to B3 करा दिया, AB3 करा दिया, राइट? सो it can be like AB4 also. Go for AB4. Can you calculate for AB4? Just a minute, please. Just a minute. Yes, स्टूडेंट, AB4 के लिए कैलकुलेट किया आपने? गुणोर आपने किया? चलो चेक करते हैं। Let us calculate like this. Like this. If solubility is S here, it is 4S here, right? So KSP is equal to S, और यहाँ पर आ गया 4S to the power 4। कितना रहा?
256, ये सुनो, कहाँ से आ रहा है आपके पास उतना? राइट, एम आई क्लियर नाउ? चलो, केमिस्ट्री आती है पर आपको मैथ्स नहीं आता, राइट? चलिए नेक्स्ट। अब आपको एक सॉल्ट देते हैं, आपने मुझे बताना है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस टाइप का सॉल्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई एम गिविंग ए सॉल्ट Al2O3। हम्म, सरप्रीत आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी को ऑडिबल है मेरी वॉइस? राइट, राइट, सरप्रीत आपकी नहीं है, चेक योर कनेक्शन। राइट, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे Al2O3 में? ये किस टाइप का सॉल्ट है? ठीक है, इट मीन्स अब इसका अगर न्यूमेरिकल आता है, सपोज आई एम गिविंग यू द KSP फॉर दिस सॉल्ट इज 1.2 10 टू द पावर -2, फाइंड द सॉलिबिलिटी। देन अब आप यहाँ पर इसे A2B3 की तरह एज्यूम करेंगे, वैसा ही इसकी KSP कैलकुलेट करेंगे। इट विल डिसोसिएट लाइक दिस, सेम। मैं अब कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बस AB की जगह पर मैं अब यहाँ पर एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, इट्स 2s 3s। So the KSP for this is equal to now aluminum ion concentration to the power 2, oxide ion concentration power 3. So 2s to the power 2 and 3s to the power 3. That comes out to be 108 s to the power 5. So KSP value is given to you now, right? KSP value is given. S value calculate करना है, तो KSP is equal to कितना रहा है? 108 s to the power 5. KSP is already given. Find the value of the S. 1.2 10 to the power -2 is equal to 108 s to the power 5. Find the value of s. 1.2 10 to the power -2 divided by 108। इसके बाद आपको मैथमेटिक्स आता है करना, राइट? आता है ना? कर लेना इसको। डन। सो बुक में आपके पास न्यूमेरिकल दिए हुए सेम टॉपिक के ऊपर, कहीं पे एस एंड की एसपी कैलकुलेट करने के लिए यू वर्क अपॉन इट नाउ, राइट? पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी केएसपी पर। ना कमिट नेक्स्ट टॉपिक नाउ। हो गया नोट, सबने कर लिया? राइट, go to next question, next topic now. Write down common ion effect. Common ion effect. अब कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? राइट डाउन। पहले डेफिनेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है जर्नली। इट्स ए डिप्रेशन इन degree of dissociation of a weak acid
or weak base in the presence of in the presence of a strong electrolyte having a common ion having a common ion. It is a depression in degree of dissociation of weak acid and weak base in the presence of strong electrolyte having a common ion. What is the meaning of this now? Just a second, please. Hello. Okay. Student, give me a minute, please. Just give me a minute. Hello. Hello. Can you hear me? हेलो. राइट. हो गया नोट, राइट? अब इसको समझते हैं यहाँ पे है क्या. कोई भी एक वीक एसिड का नेम बताओ. कोई भी एक वीक एसिड का नेम बताओ. ठीक. इट्स ए एसिडिक एसिड. Weak or strong? It's a weak. So it will undergo incomplete dissociation into its ions. Right? अब मैं इसके अंदर एक strong electrolyte ऐड कर रहा हूँ having a common ion. This is a weak acid. This is a strong electrolyte जो completely dissociate करते हैं.
एसिडेटाइन एंड Na पॉजिटिव में। अगर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट साइड में एसिडेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया इस इक्विलिब्रियम के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू लीस्ट शैटले प्रिंसिपल, अगर आप प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में आएगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा, तो अल्फा विल डिक्रीज। I can say degree of dissociation will decrease. So alpha will decrease means degree of dissociation will decrease. एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सभी लोग ध्यान से सुनना है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। इसका मतलब है अपने आयंस के साथ में ये इक्विलिब्रियम पर है। और अगर हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, हैविंग ए कॉमन आयन, कॉमन आयन कौन सा दोनों में, एसिडेटाइन। तो जब आपने मिक्स कर ही दिया है तो आपके इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम के अंदर, इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम रिएक्शन में प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन यानी एसिडेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर प्रिंसिपल, कराया मैंने आपको ली शैटलियर, कराया ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में। और अगर आपने प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड में जा रहा है। जब बैकवर्ड में जाएगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, यानी अभी कम डिसोसिएट कर रहा है फॉरवर्ड में, इट इज मोर गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। And that is why this is called as a common ion effect. Similarly, अगर आप यहाँ पर कोई वीक बेस कंसिडर करते हैं, लेट इट बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, it will dissociate to give ammonium ion plus OH नेगेटिव आयन। इसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूँ, अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पर अमोनियम आयन कॉमन है, प्रोडक्ट में अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, सो द इक्विलिब्रियम विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो इसका डिसोसिएशन हो रहा था उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो डिप्रेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक बेस in the presence of strong electrolyte having a common ion is called as a common ion effect. Am I clear? Right. Definition and example are clear to all. Right. Now, अभी दो टॉपिक हमने किए हैं, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट। इन दो टॉपिक में कोई डाउट है, बिकॉज मैं इसकी एप्लीकेशन पर आने वाला हूं। कोई डाउट यहां तक? Now, अब लिखिए एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। नंबर वन एप्लीकेशन, प्रेसिपिटेशन। Precipitation. If we have silver nitrate with potassium chloride, what is the expected product here? इस रिएक्शन को टेक्निकली आप क्या कहते हैं? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? तो AgCl का फिजिकल स्टेट क्या होगा?
मैं अब AgCl का फिजिकल स्टेट क्या लिखूं? फिजिकल स्टेट क्या लिखें? वॉइस नॉट क्लियर। एक्वस। ओके, चलो, शायद फिर हमने 10th क्लास नहीं पढ़ी है ना, कोई प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड। कुछ लैब वर्क दिखाते हैं आपको। सीरियस, मैं अभी यहाँ से इस डायग्राम को दिखा रहा हूँ। क्या हो रहा है कि एक में, एक टेस्ट ट्यूब में आपने सिल्वर नाइट्रेट रखा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने पोटेशियम क्लोराइड क्यों रखा। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एक हमारे पास एक फ्लोटिंग मास, एक क्लाउडीनेस अपीयर होती है। वो फ्लोटिंग मास ऊपर फ्लोट भी कर सकती है और सेटल डाउन भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। दिस फ्लोटिंग मास इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेट। दिस फ्लोटिंग मास इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। यहां पर इस रिएक्शन में, जो ये वाला रिएक्शन है, अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या रखा हमने, लेड नाइट्रेट में लेड आयोडाइड ऐड किया तो PbI2 के येलो कलर के पीपीटी बनते हैं, लेड आयोडाइड के येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनते हैं। पढ़ा हुआ रिएक्शन ऐसे आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, चलिए। तो इसे कहते हैं, इसका हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट बनने चाहिए। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था। इसमें किसी को डाउट है? अब मेरा क्वेश्चन यह है कि पीपीटी बनेंगे या नहीं बनेंगे। थोड़ा इसको मैं 10th क्लास को थोड़ा चैलेंज करते हैं, यहाँ पे गलत है 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, चैलेंज कर रहा हूँ मैं इसको। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट है टोटली अभी डाउटफुल है। रीजन यह है कि आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। आपने एक ड्रॉप पोटेशियम क्लोराइड ऐड किया, कितना ड्रॉप किया, 1 ml ऐड किया, तो क्या यहाँ पे पीपीटी बनेगा? या 2 ml ऐड कर दिया फिर पीपीटी बन जाएगा? ये कितने अमाउंट के ऐड करने पर पीपीटी बनेगा, यहाँ पे कोई बात मेंशन नहीं की गई। Am I क्लियर? तो यहाँ पर डायरेक्टली पीपीटी लिख देना गलत होगा। डिपेंड करता है कि अब इसकी पीपीटी बनेंगे या नहीं बनेंगे, या किस कंडीशन पे पीपीटी बनेंगे, लेट अस डिसाइड दैट। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अमाउंट ऐड करने पे पीपीटी बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? चलिए, इसका मतलब 10th क्लास में क्या कहा था कि बस दोनों को ऐड को पीपीटी बन गए। गलत। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कितना ऐड करेंगे जिसके बाद पीपीटी बनेगा, ये तो बताया ही नहीं, ठीक है, वो इनकम्प्लीट था। अब कंप्लीट करते हैं। कंप्लीशन ये है कि अगर हमारे पास में AgCl के प्रेसिपिटेट बनाने हमें सॉलिडिफाइड करना होगा, तो सॉल्यूशन को पहले AgCl के साथ में सैचुरेट होना पड़ेगा। इट मीन्स वहां पर हमारे पास में Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का ये वाला इक्विलिब्रियम आना चाहिए। AgCl का Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाना चाहिए कि सोल्यूशन सैचुरेट हो जाए। और फिर उसके बाद में अगर इन दोनों में से ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करते हैं, देन द अकॉर्डिंग टू ली शैटले प्रिंसिपल ये रिएक्शन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तब पीपीटी बनेगा। इसका मतलब है पीपीटी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, वी शुड हैव
सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद भी आपको इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज करना है, स्लाइटली और इंक्रीज करना है, देन इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द प्रेसिपिटेट विल टेक प्लेस। जस्ट 1 ml 2 ml 3 ml ऐसा कुछ भी अमाउंट ऐड करने से पीपीटी बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। दैट सॉल्यूशन मस्ट बी सैचुरेटेड विद इट्स आइंस। एम आई क्लियर? राइट। तो इट मीन्स ये जो पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं आईपी वैल्यू। आईपी स्टैंड फॉर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आईपी स्टैंड फॉर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हो सकता है, मीन्स कोई फिक्स नहीं है। लाइक दिस कि अगर हमारे पास में एक यहां पर टेस्ट ट्यूब में 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है और आप यहां से ऐड कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड 0.01 मोलर, राइट? 0.01 मोलर ऐड कर रहे हैं, तो सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में है 0.1 और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है, क्लोराइड का कंसंट्रेशन है 0.01। इन दोनों का जो प्रोडक्ट वैल्यू है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, मीन्स कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज आईपी वैल्यू। अगर आप इन दोनों की वैल्यू को इतना बढ़ा दें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, देन इन दैट केस मैंने आपसे कहा था प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज केएसपी। दो अलग अलग बातें लिख रहा हूं मैं, एक लिख रहा हूं आयोनिक प्रोडक्ट और एक मैंने जो कल आपको ऑलरेडी बताया था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हो सकता है और केएसपी वैल्यू यहां पर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यहां पर जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तब होगा। आपको समझ में आ रहा है? लेट नहीं होना, पता नहीं क्यों लेट होते हो आप, वो नहीं पता। आप यहाँ 6:15 आए, 6:15 पे आप आए, उसकी शायद उसके बाद भी आए हो सकता है उसके भी बाद आए हो। यस सुखराज, समझ में आ रहा है आपको अभी? ओके। अब आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि सॉल्यूशन मस्ट बी सैचुरेटेड, तब प्रेसिपिटेट बनने को वो तैयार होता है, तब वो सॉल्यूशन सैचुरेट बनने को प्रेसिपिटेट करने को तैयार हो सकता है। सैचुरेशन पॉइंट के आने के बाद भी आपको कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज करना, देन इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? इट मींस I say if I say IP वैल्यू मीन्स अभी हमारे पास सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है, IP वैल्यू लेस देन द KSP वैल्यू है, इट मींस सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड।
सैचुरेटेड नहीं है तो नो पीपीटी, कोई पीपीटी भी नहीं बनने के चांसेस है। जैसे आपने कुछ 1 मोल ऑफ 1 मिलीलीटर ऐड कर दिया है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर दिया, तो अब उन दोनों का जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है, आईपी वैल्यू है, अगर वो केएसपी से कम है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अगर आईपी वैल्यू जस्ट इक्वल टू केएसपी हो जाता है, जस्ट इक्वल टू सैचुरेटेड केएसपी हो जाता है, जस्ट इक्वल टू केएसपी हो जाता है, तो उस केस में सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, लेकिन अभी भी पीपीटी नहीं बनेंगे। इट इज रेडी टू प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट्स। प्रेसिपिटेट बन जाएगा ऐसा नहीं है, but it is ready to precipitate now. So I can say precipitation just starts. And if the IP value is greater than the KSP value, if the IP value is greater than KSP value, तो उस केस में क्या होगा, अब कॉन्सेंट्रेशन आयंस का बढ़ गया और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। 3 कंडीशन, कब पीपीटी बनेगा, जब आईपी का वैल्यू केएसपी से इंक्रीज कर जाएगा। Am I clear? हाँ, जब ऑफ कोर्स सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेट के बाद में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, तब पीपीटी बनेंगे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। वही क्वेश्चन दे रहा हूं, 0.01 मोलर पोटेशियम क्लोराइड मिक्स्ड विद 0.02 मोलर silver nitrate, and the KSP for the AgCl is 1.3 into 10 to the power minus 3. इक्वल वॉल्यूम मिक्स्ड, दोनों के 100 ml लेट इट बी, या दोनों के कुछ भी अमाउंट लिख ले, लेकिन इक्वल वॉल्यूम को हमने मिक्स कर दिया। माय क्वेश्चन इज, विल प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस और नॉट, विल प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस और नॉट। ठीक है, समझ में आ गया आपको, प्रेसिपिटेशन होगा या फिर नहीं होगा। ये पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं ही सॉल्यूशन करने वाला हूं। लिख ले क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड कर दिया इक्वल वॉल्यूम में, केएसपी दे दिया आपको, और अब बताना है कि इसमें प्रेसिपिटेशन होगी या फिर नहीं होगी। प्रेसिपिटेशन कब होती है, इसको एनालाइज करते हैं। जब आईपी वैल्यू मोर देन द केएसपी वैल्यू, टेक्निकली बात करेंगे। पहले मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बात किया कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाना चाहिए, सैचुरेट होने के बाद और कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे तो पीपीटी बनेंगे। अब मैथमेटिकली बात करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है हमारे पास में। जब ये एजी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसे कहेंगे आईपी वैल्यू, जब सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ है, राइट, इफ सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड, सॉल्यूशन नॉट सैचुरेटेड। और अगर सैचुरेट हो गया तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो केएसपी होगा। ये केएसपी का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट होने के लिए आईपी वैल्यू मस्ट एक्सीड द केएसपी वैल्यू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पीपीटी बनेंगे, नहीं तो पीपीटी नहीं बनेंगे मैथमेटिकली, राइट। तो हमारे पास में यहां पर क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन बिफोर मिक्सिंग कितना है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक वैल्यू 0.01, 0.01 मोलर। और सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन बिफोर मिक्सिंग क्या है, 0.02 मोलर। यस नो, चलिए। अब जब आपने इक्वल वॉल्यूम में दोनों को ऐड कर दिया, आफ्टर मिक्सिंग, जब वॉल्यूम को, दोनों इक्वल वॉल्यूम को ऐड किया तो वॉल्यूम विल बिकम डबल। अगर वॉल्यूम बिकम डबल तो कॉन्सेंट्रेशन बिकम हाफ। यस नो,
तो 0.01 का हाफ कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.005 एंड सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नाउ 0.02 डिवाइड बाय 2 0.01। ये सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर मिक्सिंग मिक्सिंग करने से पहले 0.01 0.02 और मिक्सिंग करने के बाद में उनका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में जो अब कॉन्सेंट्रेशन आया है उसका मैं आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं में दिस इज इक्वल टू आईपी वैल्यू। ये है आपके पास 0.005 और ये वैल्यू है 0.01। दिस इज इक्वल टू आईपी वैल्यू। तो 5 into 10 to the power minus 3 into 1 into 10 to the power minus 2 is equal to IP value. So this is now equal to 5 into 10 to the power minus 5। ये वैल्यू देखो जो आपके पास आईपी का वैल्यू आया है कंपेयर करो केएसपी के साथ में। कंपेयर करो केएसपी के साथ में। केएसपी कितना दिया हुआ है 10 to the power minus 3 का वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू आ रहा है 10 to the power minus 5। इसका मतलब इस केस में आईपी अभी कम है एज कंपेयर टू केएसपी। नो पीपीटी विल टेक प्लेस। इवन कि आप मिक्स करेंगे तो पीपीटी नहीं बनेगा। जबकि 10th क्लास में क्या पढ़ा था बस दो चीजों को ऐड करो पीपीटी बन गया। झूठ बोलते हैं 10th क्लास में। आधा सच। झूठ नहीं बोला बट आधा सच बोला। आधा सच क्या था कि दो इलेक्ट्रोलाइट को आपने ऐड किया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और उसमें प्रेसिपिटेट बन गया। दिस इज कॉल्ड एज ए पीपीटी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इनकम्प्लीट था। कितना अमाउंट ऐड करेंगे कि पीपीटी बन जाए? तो कंडीशन इज आईपी वैल्यू मस्ट एक्सीड दी केएसपी वैल्यू। Am I clear? बुक्स खोल लो देखो जरा बहुत सारे क्वेश्चन दिए वहां पर इस पर बेस्ड। एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट उनमें से एक टाइप वाला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेसिपिटेशन। मैंने एक न्यूमेरिकल करा दिया बुक में आई थिंक ज्यादा न्यूमेरिकल दिए हुए। ट्राई ऑल ऑफ देम और करके सेंड करो मेरे को होमवर्क। सॉल्व अनसॉल्व सारे प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस करो उसका पीडीएफ बना के मेरे को भेज दो। राइट बताइए किसी को डाउट है अभी तक? गुरनूर प्रबल जशन ओके। सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए। सॉल्ट फॉर्मेशन। मैं आपको 3 एप्लीकेशन कराऊंगा। अभी सेकेंड एप्लीकेशन करा रहा हूं सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट मैं बेसिकली यहाँ पे कहूंगा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl। फॉर्मेशन की जगह पे मैं वर्ड यूज करने वाला हूँ प्रेसिपिटेशन। टेक्निकली मैं प्रेसिपिटेशन यूज करने वाला हूँ। फॉर्मेशन एक कॉमन लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाला हूँ। ठीक है कॉमन मैन कुछ ऐसा कहता है कि हम सोडियम क्लोराइड कहाँ से बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं जो कॉमन नमक आता है वो कैसे बनता है बनता है राइट। तो फॉर्मेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ। चलो बता सकते हैं आप कैसे बनता है? कहाँ से बनता है? ओके सी वाटर को इवेपोरेट करके। चलो आप में से कितने लोग रन ऑफ कच्छ गए हैं कभी? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड रन ऑफ कच्छ?
राइट। ये ये बेसिकली हमारे पास में, इसे हम कहते हैं व्हाइट डेजर्ट, नमक का समुद्र, नमक का एक डेजर्ट है। व्हाइट डेजर्ट। और ये बेसिकली गुजरात का एक पर्टिकुलर एरिया है। राइट, मैं गुजरात का अप्रोक्सीमेटली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया शेडेड एरिया, ये रन ऑफ कच्छ है। यहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी आता है, और ये जितना एरिया है अप्रोक्सीमेटली सी पॉइंट से लेकर, जहां से सी शोर स्टार्ट होता है, वहां से 200 किलोमीटर तक का जो स्ट्रेच है, उसमें एक भी प्लांट नहीं है। नंबर वन, कोई भी प्लांट ही नहीं है। राइट। जो वहां पर ये जो एरिया है, लैंड है, यहाँ पर सॉल्ट की खेती होती है। क्या कहूँगा, सॉल्ट की खेती होती है। वहां पर जो खेत होते हैं, यहाँ पे ना पंजाब में या कहीं और जगह पर खेत, मतलब ग्रीन खेत खेत मानते हैं, कुछ वहां पर क्रॉप्स प्रोडक्शन की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन हो ही करते ही नहीं है, ना हो सकती है। क्या करते हैं यहाँ पर, सी पॉइंट से जितने भी दूरी पर आप हैं, वहां तक एक पाइपलाइन ले जाकर के एक बहुत बड़ा गड्ढा सा करते हैं। बहुत बड़ा गड्ढा, मतलब कि जस्ट जितनी बड़ी आपकी बिल्डिंग है, घर है, उतना गहरा, और जितना बड़ा खेत है वो। ठीक है। तो समुद्र के पानी को इसमें फिल कर देते हैं। मोटर लगा दो तो समुद्र का पानी इसमें अंदर एंटर कर जाएगा। कब करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम करेंगे इन द मंथ ऑफ फेब। ये खेती बता रहा हूं मैं, जैसे गेहूं को कब उगाते हैं, मक्की को कब उगाते हैं, तो उसका कोई डे होता है, कोई मौसम होता होगा। तो नमक की खेती के लिए रेफरेंस टाइम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट टाइम है फेब, जब आप यहाँ पे फिल कर देंगे। गुजरात जो है वो एक काफी गर्म स्टेट है, तो वहां पर मार्च में ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जैसे यहाँ पंजाब में गर्मी मई और जून में होती है, वैसे वहां पर मार्च में स्टार्ट हो जाती है। राइट। मार्च, मार्च अप्रैल एंड मई, ये 3 महीने में ये वाटर इवेपोरेट करता है। और मई के एंड में या जून में बारिश आने वाली है यहाँ पर। राइट। तो उससे पहले क्या करेंगे, मई में ही जब ये इवेपोरेट हो चुका होगा तो सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा। इतना ज्यादा हम इसको इवेपोरेशन होने देंगे, गर्मी बहुत पड़ती है, तो इवेपोरेशन होता रहेगा, तो यहाँ पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, NaCl, solid in equilibrium with NaCl aqueous to give Na positive Cl negative ion। राइट। सॉल्ट में, उस सॉल्यूशन में और भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और भी सॉल्ट है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, वो भी सॉल्ट है। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड का KSP वैल्यू सबसे कम है, ये एक अच्छी बात है। सॉलिबिलिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर सॉल्ट्स। तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पर HCl ऐड कर दें, क्या ऐड कर देंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट, अप्लाई द कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इस इक्विलिब्रियम में आपने HCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐड कर दिया, क्लोराइड concentration increases, this equilibrium goes in the backward direction and we get sodium chloride precipitate। कोई डाउट है? अब सॉलिडिफाइड हो गया तो आप फिल्टर कर लेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन पे ले जाएंगे। राइट, पैकिंग करके घर में आ गया आपके। बाकी सभी सॉल्ट से कंपैरेटिवली इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होता है, इसलिए आपको सबसे कम HCl ऐड करना है। इस केस में जल्दी से प्रेसिपिटेट कर जाएगा, बाकी सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे। एक एक्सप्लेनेशन ये है कैसे हम बनाते हैं। दूसरा,
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन सी वाटर में भी है, तभी हमारे पास आईपी वैल्यू है। आपने क्या किया, उसमें आपने क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज कर दिया तो ये प्रोडक्ट का वैल्यू KSP बन गया। जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया और जब ये KSP का वैल्यू आईपी का वैल्यू KSP से एक्सीड कर गया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ये मैंने मैथमेटिकली जस्टिफाई किया। आपने क्लोराइड ऐड कर दिया, HCl ऐड करके, तो बेसिकली आप आईपी की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और जब ये आईपी का वैल्यू KSP वैल्यू से एक्सीड करेगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। दिस इज नोन एज ए सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सी वाटर। कोई डाउट इसमें? आपको जो होमवर्क है वो है पीएच KSP के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कॉमन आइन इफेक्ट की जो एक एप्लीकेशन मैंने कराई है प्रेसिपिटेशन, उसका न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। बहुत दिए हुए हैं, बहुत दिए हैं, राइट। 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करिए। इन तीनों पर पेपर में जरूर आता है। और जितना प्रैक्टिस करते हैं उसका पीपीटी बना के मेरे को भेज दीजिए, उसका उसका वो PDF बना के मुझे भेज दीजिए, राइट। दिस इज होमवर्क। पता चलेगा आपने किया है कुछ काम, नहीं तो अगले दिन बुद्धू बन के बैठे होते हो। एक एप्लीकेशन क्विकली और करते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, ये 10th क्लास में आपने किया है टॉपिक। सोप फॉर्मेशन किया था नहीं किया था? प्रैक्टिकल भी किया था, लैब में नहीं किया था? प्रैक्टिकल नहीं किया, चलिए प्रैक्टिकल में अभी आपको बता देता हूँ क्या है। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, सोप कैसे बनाते हैं। हम लेते हैं ऑयल। वो ऑयल कोई भी ऑयल हो सकता है, दैट मीन कैन बी मस्टर्ड ऑयल, दैट कैन बी पाइन ऑयल, दैट कैन बी कोकोनट ऑयल, कोई भी प्लांट ऑयल ले लीजिए। उसको इतना हीट करके बॉयल करने लगे और उसमें ऐड कर देते सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से हमें मिलेगा सोप सॉल्यूशन प्लस ग्लिसरीन प्लस वाटर, 3 चीजें मिलती हैं। इस सोप सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिलेगा, इसको हम सोप सॉल्यूशन में HCl ऐड करते हैं तो आपके पास में सॉलिड सोप मिल जाता है। दैट्स इट, खत्म। ठीक है। आई थिंक लुधियाना में काफी कंपनीज हैं, काफी फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पर ये सोप बनता है। उनमें से एक फेमस नाम सुना होगा आपने, छोकरा साबुन। हैव यू हर्ड अबाउट? ऐसा कुछ लिखा आता है। घर में भी रखा होगा आपके। अरे आपके घर में भी रखा हुआ है, देखो जरा चेक करके। टीवी में तो ऐड छोड़ा, आपके घर में भी आया होगा। ठीक है। और भी बहुत सारी कुछ कंपनीज हैं जो ऐसा कुछ सोप बनाती हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा प्लांट होता है, लोग अपने घर में ही बना रहे हैं और उसको बना करके मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी। क्या करते हैं, बस ऑयल, कौन सा ऑयल, कौन सा ऑयल, कोई भी प्लांट ऑयल, कोई भी प्लांट ऑयल, राइट। जो सबसे सस्ता ऑयल, कस्टर्ड ऑयल आता है मार्केट में, या पाइन ऑयल आता है सबसे सस्ता, यूकलिप्टस ऑयल, वो यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल बहुत महंगा है, वो नहीं यूज होगा। क्या ऐड करना है, उसको बॉयल करना है और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। कीप ऑन हीटिंग इट, सोप बन जाएगा। एंड देन यू ऐड द HCl, यू विल गेट द सोप सॉलिडिफाइड। बस उसके बाद में उसकी ड्राइंग करने पर कटिंग करनी है और उसके बाद स्टैंपिंग करनी है और पैकिंग करनी है, हो गया काम, राइट। लोग अपने घर में कर रहे हैं वैसे, एक कमरे के अंदर ही पूरा सोप फैक्ट्री में है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है इसमें, राइट। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, मैं इसके बारे में बात करना हूँ। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ये है कि जो सोप, जो ऑयल होता है, वो होता है एस्टर्स, RCOOR। जो ये R है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम है। बेसिकली ट्राई एस्टर्स कहूंगा मैं यहाँ पर। कैसा ट्राई एस्टर्स, ऐसा 1 2 3, ये आ गया ट्राई एस्टर।
आपने इसमें ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट कर दिया। यहां से एक मिलेगा हमें ग्लिसरोल यानी ग्लिसरीन, और दूसरा मिलेगा 3 मोल ऑफ दिस सोप, RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज सोप। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज सोप। जो R की वैल्यू है लॉन्ग चेन कार्बन एटम होती है लाइक C17H35। जो नॉर्मली सोप जो कपड़े धोने का साबुन आता है उसका कंपोजिशन ये होता है। So C17H35COONA, this is called as a sodium stearate, and this is the soap basically. कौन सा सोप? जो खाकी कलर का, ब्राउन कलर का सोप आता है। ये कार्बन एटम अगर डिफरेंट हो जाते हैं 18, 19, 20, तो वो बेदिंग सोप में आ जाते हैं, मे बी लाइक लक्स, बाकी कोई भी कंपनी कोई भी, ठीक। बेदिंग सोप्स आते हैं, बेदिंग सोप्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सोप, खाकी कलर सोप। केमिकली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, ओनली नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस है। बेदिंग सोप में परफ्यूम और कलर ऐड कर देते हैं, अदरवाइज डेट इज सेम फंक्शन लाइक डेट ऑफ द अदर सॉल्ट। तो आप इससे नहाइए, जो खाकी कलर का साबुन है छोकरा साबुन, उससे नहाइए, या फिर लक्स से नहाइए, दोनों में क्लिनजिंग एक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस परफ्यूम का डिफरेंस है। तो कहते हैं सोप अच्छा है तो सोप बुरा है, या सोप ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे सोप बराबर हैं, एक जैसे हैं, राइट। सोप फॉर्मेशन समझ में आपको? जो यहाँ पर सोप बना है इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, अभी हमने नोट कर लिया इतना, नोट हो गया? चलो 2 मिनट और लगेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। राइट, नाउ उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोप है सैचुरेट करेंगे, उसको हम हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, इट बिकम सॉलिड। नाउ RCOONA, now it become RCOO negative ion, Na positive ion, right? अब क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, आपने यहां पर लास्ट में क्या करना है, NaCl ऐड करना है, Na positive, Cl negative ion, common ion effect. Can you see that common ion effect? Reaction goes in the backward direction and it becomes solidified. It becomes solidified. Apply the Lee Chatelier principle. समझ में आ रहा है आपको? हेलो, टेक्निकली क्या हुआ, जो हमारे पास में ये कार्बोक्सिलेट आयन है और Na पॉजिटिव आयन है, आपने NaCl ऐड करके ये वैल्यू बढ़ा दिया, तो आपने बेसिकली IP वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। जब आपने IP वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो IP वैल्यू एक्सीड्स द KSP वैल्यू, और जब ऐसा हो जाता है, जब ऐसी स्टेट आ जाती है, देन द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। ये मैथमेटिकल बात बताई मैंने, वहां से मैंने ली शैटलर से प्रूव किया, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट एंड solubility product. Done. This is called a salting out of soap. Salting out of soap. सोप के सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करना बाय द NaCl. यस, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो अभी। नो डाउट, चलिए फिर आज इतना ही करेंगे।
इतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए और भेजिए मेरे को, राइट। चलिए, और एक असाइनमेंट मैं भेज रहा हूँ अभी आपको, वो भी करना है। काम करिए, मार्क्स आएंगे। ओके।